Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss KVS NVS principal exam. It is already completed in month of March. So, it is part two. Uh, in this part also, I will discuss 20 questions. It is 21 to 40. It is MCQ paper. Two papers we are there, one MCQ and another one subjective. It is MCQ related to the question 21 to 40 related to the academics and management. So definitely uh, I will discuss with brief explanation. Definitely session would be interesting one. Till end listen the video, you get complete information. So my friends, please subscribe my channel. Asit Governmental Guru, let's compete. You subscribe my channel, like my channel, and share my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. If any queries there, you can contact with me in my WhatsApp number 8327782034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss KVS NVS principal question paper. It is question number 21 to 40 MCQ related question. You see question number 21. Consider the following statements on human resource development. Choose the correct answer. Three statements given. First one, human resource development is the framework for helping employees develop their personal and organizational skills, knowledge, and abilities. Second one, the focus of all aspects of human resource development is on developing the most superior workforce so that the organization and individual employees can accomplish their work goals in service to customers. Third one, human resource development can be only formal, such as in classroom training, a college course, or an organizationally planned change effort. Only third statement wrong hai. First two statements are correct one. You know what is the meaning of human capital formation? Capital formation, it is related to the capital formation. Alternative meaning, it is investment. Okay, so capital formation, human capital formation, investing money on education, investing money on health, investing money on migration, investing money on information. Okay, so that through education, the skill power of the human being, the efficiency power, the potentiality of the human being can be enhanced. Similarly, if the person is healthy one, then definitely he or she can use his or her 100% efficiency power. Similarly, migration, go to the abroad and get special training and come back and providing efficient training to the people, providing efficient quality service to the people. Similarly, related to the information also, each and every time it means the person collect information through newspapers, news channels, through online platforms, and it means enhance their knowledge. Capital human resource development, first one you see in every organization. So money should invest on actually human resource, so that they must capable. It means to handle everything. Their skill power, their knowledge, abilities. Okay, and ultimately the organization can achieve the goal. So first two statements are correct one. Option one is the correct answer. राइट इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स देख लीजिए. थर्ड स्टेटमेंट गलत है. तो यहाँ पर देखिए, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जो इट मीन्स जो एम्प्लॉइज है, आप देखा होगा इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन regularly training facilities conducted, and basically schools, you see, it is related to the education. Now CPDT, continuous professional development training, it means minimum 50 hours training is required for the teachers. So special, it means in KVS and VS and in other central and state government schools also, special training providing to the teachers, so they can up to date their knowledge, they can adapt to it, new educational methods, new educational technology, and it means they acquire the knowledge related to the management skills of the classroom,
and how can they improve their teaching learning transaction like this. So HRD, so human resource management, that focuses on the continuous improvement of employees' competencies. It is based on the idea that an organization's greatest asset is its people, and by investing in them, the organization ensures its own long-term success. सो इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना है, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग, मैनेजरियल ट्रेनिंग, इट मीन्स विभिन्न तरीके का ट्रेनिंग इट मीन्स प्रोवाइड करना है. और यहाँ पर यदि एजुकेशनल मैटर आता है बेसिकली फॉर टीचर्स, मैं अभी बताया कि इंटरमिटेंटली रेगुलरली ट्रेनिंग फैसिलिटीज शुड बी गिवन, and so that they acquire with new educational technology, they can improve their teaching learning transaction. It means basically skills related to the management of classroom and related to the leadership quality, related to the providing support to the slow learners or supportive learners, or similarly now inclusive classroom, all students, it means normal and other disabled students, they can sit, so that it means the teacher must competent one to handle it means different types of students. So इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत नेसेसरी है. इसके ऊपर कुछ डाटा आप देख लीजिए. मेन कंपोनेंट्स जो है HRD का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फर्स्ट वन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ए वेरी कॉमन थिंग है. ट्रेनिंग इज ए कॉमन थिंग. थ्रू ट्रेनिंग ओनली इट मीन्स जो एम्प्लॉयज है उनका स्किल पावर, उनका एफिशिएंसी पावर, उनका जो पोटेंशियलिटी है, उनका जो एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क है वो बढ़ जाएगा. सो इम्प्रूविंग जॉब रिलेटेड स्किल्स, training and development. One is next one, career development, helping employees grow in their careers. Performance management, evaluating and improving performance. And last one, organizational development, improving the overall work environment. तो जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसी रिलेटेड में आता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन को ले जाइए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी वन. कैरियर डेवलपमेंट, so helping employees grow in their careers, performance management, organization development. So all these are the main components. तो similarly जब हम स्कूल्स को आ जाएंगे, स्कूल एजुकेशन को आ जाएंगे, तो ट्रेनिंग तो बहुत एसेंशियल है. और कैरियर डेवलपमेंट में रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन, some cases actually the teachers like TGT promote to PGT, PGT to vice principal, vice principal to principal, principal to other higher authorities. तो ये जो कैरियर डेवलपमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कैरियर डेवलपमेंट मीन्स एक्चुअली द टीचिंग कम्युनिटीज ऑल्सो they must acquire, they not only acquire knowledge related to the academics, but also they acquire knowledge related to the administration. They must acquire knowledge related to the finance. They are having some also managerial abilities, how to manage the institution, how to organize the institution, what type of plans should be made so that it means the educational institution can grow. Performance is very important one. Now you know it means benchmark is there, every subject average is there, benchmark is there. So how to achieve the benchmark, how to improve the average, how to guide the slow learners and supportive learners. Okay, how to reduce the gap related to the marks of it means basically some good students and some slow learner students. So ये सब performance management. And the last one, organization development, how to organize the educational institution, how to manage the classroom, how to effectively utilize the time for the students. Okay, it means what type of quality teaching materials should be given, how to improve the teaching learning transaction in the classroom, how to adapt with the new technology, how to it means involve in teaching learning transaction through smart boards. So many things are there. So all are the main components of HRD. Next one, you see question number 22.
Question number 22. It is given, consider the following statements about organization and manager. Okay. An organization as a group of people working together in a structured and coordinated fashion to achieve a set of goals. ये तो करेक्ट है. All organizations use only 2 out of 4 basic kinds of resources: human, financial, physical and information from their environment. All organizations use only 2 out of 4 basic kinds of resource. ये गलत होगा क्योंकि 4 type of resources required. Managers are responsible for combining and coordinating these various resources to achieve the organization goals. ये करेक्ट है. तो यहां पर बहुत इजी है. करेक्ट आंसर पूछा है ऑप्शन ए एंड सी. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो अभी उसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे. द 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. 4 फंक्शंस मैनेजमेंट, POLC ये कॉमन है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, दीज फंक्शंस रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस साइकिल मैनेजर्स यूज टू अचीव रिजल्ट्स. जो मैनेजर है, जो हेड ऑफ द बेसिकली इंस्टीट्यूशन है, उसका क्या मेन फंक्शंस क्या है? हाउ टू मैनेज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाउ टू मैनेज एनी, ये जो है एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूशन. बट मैं इसको लिंक करता हूं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. फर्स्ट वन प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट इन एडवांस टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव. हमको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है. हम टारगेट को कैसे अचीव करेंगे? जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जैसे हमारा रिमेडियल क्लास होना चाहिए. रिमेडियल classes should be conducted for the slow learners and supportive learners, right? Extra classes should be conducted, and suppose some micro teaching. Now it means MCQ related questions should be discussed. It means basically logical reasoning type of questions should be discussed. So उसका एक फ्रेमवर्क हमको पहले से बनाना है कि हमारा जो शेड्यूल रहेगा, जैसे जो टाइम टेबल कैसा रहेगा, ठीक है, और कब एक्स्ट्रा क्लासेस होगा, कब रिमेडियल क्लासेस होगा, ठीक है, और कैसे सपोर्टिव लर्नर्स को उनका स्टैंडर्ड को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, और बाकी कैसे जो रिसोर्सेज को प्रॉपरली हम यूटिलाइज करेंगे. चाहे जो भी रिसोर्सेज, चाहे फाइनेंशियल है कि फिजिकल है, सपोज ह्यूमन रिसोर्स है, हम इसको प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करेंगे. ठीक है. तो इसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है इन एडवांस टू अचीव द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ठीक है. तो प्लानिंग में बहुत कुछ चीज आता है, करिकुलर एक्टिविटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज. इन बोथ एक्टिविटीज एक्चुअली ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड परफॉर्म वेल, नॉट ओनली इन करिकुलर एक्टिविटीज बट ऑल्सो इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज. तो हमको एक प्लानिंग करना है. वही है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम. इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजिंग में बहुत चीज आता है. ऑर्गेनाइजिंग में जैसे कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सोच रहे हो. इट मीन्स हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स. ठीक है. जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्कर है, उनका जो एक्सपर्टाइज है, हम कैसे वर्क को डिवाइड करेंगे. ओके. तो जो बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ टू ऑप्टिमली यूटिलाइज द डिफरेंट रिसोर्सेस, हाउ टू ऑप्टिमली यूटिलाइज द ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स की फिजिकल रिसोर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन रिसोर्स. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजिंग में बहुत कुछ चीज है, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग इन ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजर का. हाउ टू इट मीन्स ऑर्गेनाइज द इंस्टीट्यूशन. ओके. हाउ टू मॉनिटर, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मैनेज, हाउ टू यूटिलाइज द डिफरेंट इट मीन्स अवेलेबल रिसोर्सेज. सो सिमिलरली जो ऑर्गेनाइजिंग होता है, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जाइए, ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात. जैसे फिजिकल रिसोर्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे स्मार्ट बोर्ड हो, चाहे लैब हो, चाहे लाइब्रेरी हो, ठीक है, चाहे एनी अदर संकल्प लैब हो, जो भी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाएगा. और जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारा टीचर्स है, तो कैसे एक्चुअली उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा,
कैसे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, कैसे उनका टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन इफेक्टिव होगा, कैसे वो स्मार्ट बोर्ड टीचिंग बहुत अच्छा तरीके से वो बच्चों को एक्चुअली थ्रू स्मार्ट बोर्ड इट मीन्स दे कैन टीच प्रॉपरली। तो बहुत कुछ चीज आता है, तो उसमें मॉनिटरिंग आ जाता है, उसमें सुपरविजन आता है, ये सब चीज होता है मेनली मैनेजर का। तो मैनेजर एक्चुअली बेसिकली द प्रिंसिपल, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन organizing everything. Okay, so designing the structure of the organization, assigning tasks and allocating resources, human, financial, physical and information to carry out the plan. Similarly, leadership, actually leader play the most important role. Leader is a motivator, leader is a trainer, leader actually boosting the employees, leader solve the problem of the employees, right? So लीडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लीडिंग हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आएंगे, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जो प्रिंसिपल है, वो लीडर है एक्चुअली, बिकॉज प्रेसिडिंग टाइम ही वाज ए टीचर, ही नोज द एक्चुअली स्कूल एनवायरमेंट, ही नोज द टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन इन द क्लासरूम, हाउ टू मैनेज द क्लासरूम, हाउ टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। सो सिमिलरली लीडर एक्चुअली basically as a principal you should motivate the teachers, you must boost the teachers, you try to listen the teachers if they face any problem, always you stand in front of them like a commander, and so that leader role is very important one. So motivating, influencing and directing employees to perform their best, this involves communication and leadership. नेक्स्ट वन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में मॉनिटरिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंपेयरिंग विथ गोल्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ देयर आर डेविएशंस। सो कंट्रोलिंग में वही है कि हम परफॉर्मेंस को जज करेंगे, परफॉर्मेंस को एवेलुएट करेंगे कि जो भी हमारा रूटीन है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, वेदर इट मीन्स द रूटीन इज प्रॉपरली फंक्शनिंग और नॉट, वेदर द रूटीन इज प्रॉपरली इंप्लीमेंटिंग और नॉट, वेदर जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वेदर इट इज प्रॉपरली कैरिड आउट और नॉट, ये सब कंट्रोलिंग में आता है। यदि कुछ डेविएशन है, यदि कुछ लैकुनास है, डिसएडवांटेजेस है, उसको करेक्ट किया जाएगा। तो ये जो 4 फैक्ट ट्रेड्स है एक्चुअली, POLC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए मैनेजर। तो उसी को पिक्चर बेस में मैं कर दिया 4 की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी आपको यूजफुल होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। नेक्स्ट वन हम रिसोर्सेस का बात करेंगे। 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेस, वन इज द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स एक्चुअली हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तो मेनली हमारा जो टीचर्स है, बिकॉज डायरेक्टली जो द प्रिंसिपल एक्चुअली डायरेक्टली इट मीन्स इज नॉट इन्वॉल्विंग इन टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन, बिकॉज ही इज अ ग्रेट मोटिवेटर and he is a decision maker. He also oversee the administration, he also oversee the financial part, so many things are there. तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम जो हमारा टीचर्स है उनको कैसे हम प्रॉपरली इट मीन्स यूटिलाइज करेंगे, इफेक्टिवली यूटिलाइज, उनका ब्रेन को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाएगा। तो ऐसे हम अल्टीमेटली हम जो बेंचमार्क है ऑर्गेनाइज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो अचीव होगा। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स द वर्कफोर्स, तो देयर स्किल्स, टैलेंट एंड एक्सपीरियंस सब कुछ आता है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस नेक्स्ट वन, इट मीन्स हाउ टू यूटिलाइज financial resources economically so that output would be maximum. Okay, capital, revenue and budget available for operations. Similarly, physical resources, basically infrastructure. तो फाइनेंशियल रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली स्कूल्स में फाइनेंशियल रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस है हम कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, इट मीन्स टू डेवलप द इट मीन्स proper infrastructure so that the students can get actually minimum infrastructural facilities in the school. And nowadays you know according to the new education policy, it means now it means technological advancement is there in educational institution. Each and every class it means smart board should be fixed, and different labs also, one Sankalp lab also it means introduced in Navodaya and KV, so that financial resources actually how to utilize it means limited financial resources properly,
so that proper infrastructures can be developed. चाहे लैब हो कि लाइब्रेरी हो कि आपका स्मार्ट क्लासरूम हो, चाहे आपका बेसिकली क्लासरूम आपका जो चेयर बेंचेस टेबल हो, तो ये सब प्रॉपरली कैसे हम अरेंज करेंगे. ठीक है. फिजिकल रिसोर्सेस है, tangible assets such as raw materials, machinery, facilities, inventory. And fourth one, information. ठीक है. Fourth one, information resources, data, marketing intelligence and reports used to make informed decisions. तो 4 type of resources है: human, financial, physical, information resources. ठीक है. तो जैसे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस एक्चुअली आपको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर रिजल्ट और दिस ईयर रिजल्ट. ठीक है. और आपको कंपेयर करना है आपका स्कूल रिजल्ट विथ अदर स्कूल्स. ठीक है. तो वो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस में आता है. ठीक है. तो ये 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, नेक्स्ट में द मल्टीफैसेटेड रोल ऑफ ए मैनेजर. अच्छा, तो देयर रोल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन एरियाज. मीन्सबर्ग का जो मैनेजरियल रोल्स है, यहाँ पर थोड़ा याद रखिए इसको. तो ए मैनेजर एक्ट्स एज द ब्रिज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड द एम्प्लॉइज एग्जीक्यूशन. तो जो मैनेजर का मेन एक एक मीडिएटर रोल प्ले करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है और उसको एम्प्लॉइज का एग्जीक्यूशन, जो प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कैसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाएगा. तो उसमें देखिए मैनेजर का जो मल्टीफैसेटेड रोल है, इंटरपर्सनल रोल्स. इंटरपर्सनल में एक फिगर हेड है, वो मेन है परफॉर्मिंग सेरिमोनियल एंड सिंबॉलिक ड्यूटीज, क्योंकि वो सभी चीज वो देखेगा. एकेडमिक्स को चेक करेगा, जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी वो देखेगा. ठीक है. चाहे जो डिफरेंट रिसोर्सेस है, मैं बताया फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स में वो फर्स्ट चेक करेगा कि ईच एंड एवरी क्लासरूम वेदर द टीचर्स एक्चुअली दे आर प्रोवाइडिंग इफेक्टिव, their teaching is effective one or not, they involve properly in teaching learning transaction or not. एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में आएगा तो वो फाइनेंशियल रिसोर्स, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस में क्या क्या फैसिलिटीज होना चाहिए स्टूडेंट के लिए. तो ये सब जो फिगर हेड और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो ये सब चीज वो देखता है. तो फिगर हेड है, ओवरऑल हेड है. लीडर मैं बता चुका हूं कि ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग द टीम. तो बेसिकली प्रिंसिपल प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इज अ ग्रेट मोटिवेटर and give direction to the teachers. Liaison means maintaining a network of outside contracts who provides favors and information. तो यहाँ पर जो लाइजन है, यहाँ पर जो सपोज हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लिंक करेंगे तो प्रिंसिपल एक्चुअली ही मस्ट हैव गुड रैपोर्ट विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. डिस्ट्रिक्ट में जो जो ऑफिसर्स है, चाहे जोनल एजुकेशन ऑफिसर है कि कलेक्टर है कि सपोज चीफ मेडिकल ऑफिसर है कि जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का इंजीनियर है, तो सबके साथ अच्छा एक रैपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि सबका जरूरत है स्कूल में. हमको वाटर फैसिलिटी चाहिए, हमको सैनिटेशन फैसिलिटी चाहिए, हमको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, हमको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए. तो सबके साथ एक अच्छा रैपोर्ट होना चाहिए. तो मेंटेनिंग ए नेटवर्क ऑफ आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हु प्रोवाइड फेवर्स एंड इंफॉर्मेशन, तो ये इंटरपर्सनल रोल में आता है. ठीक है. नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशनल रोल्स. इंफॉर्मेशनल रोल्स में मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन. ठीक है. मॉनिटर जो है बेसिकली सीकिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट. तो मेन रोल है मॉनिटरिंग. जो लीडर है, बेसिकली जो मैनेजर है, जैसे बोलता हूँ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की द प्रिंसिपल, उसका मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. ओवरऑल जो मॉनिटरिंग होता है उसका होता है, चाहे क्लासरूम मॉनिटरिंग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग हो, चाहे जो आउटसाइड में क्या इट मीन्स क्या इट मीन्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में जो हमारा जो पीटीसी पेरेंट टीचर कमेटी है कि जो हमारा पेरेंट मेंबर्स है कि जो कम्युनिटी मेंबर्स है उनके साथ हमारा क्या कोऑर्डिनेशन है. तो मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फिर डिसेमिनेटर, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको मिलता है तो वो इमीडिएटली डिसेमिनेट करता है टीचर्स को. ठीक है. जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स और अदर एम्प्लॉइज टू मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक स्पोक्स पर्सन है, सपोज वो इन्फॉर्म करता है कि सपोज एक्चुअली
स्कूल का आप देखा होगा जब एनुअल फंक्शन होता है तो मेन पर्सन है एक्चुअली द प्रिंसिपल, एक्चुअली वो डिटेल्स देता है क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है, इसी बार क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, और स्पोर्ट्स में है कि अदर जो आर्ट है कि म्यूजिक है कि एनी अदर डांस कंपटीशन है कि एनी अदर सपोज इनसाइड इनसाइड कंपटीशन और आउटसाइड कंपटीशन में जो बच्चों का परफॉर्मेंस था, स्कूल का रिजल्ट क्या है और कंपेयर विथ इट मीन्स प्रीवियस ईयर्स, तो वो पूरा इंफॉर्मेशन देता है। तो ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड रिजल्ट्स। नेक्स्ट वन डिसीजन रोल्स में इंटरप्रेनर, क्योंकि इंटरप्रेनर का जो मेन रोल है आप देखा होगा बेसिकली बिजनेस रिलेटेड में जाइए, अनसर्टनिटी एंड रिस्क, मेनली इंटरप्रेनर का मेन रोल है कि हाउ कैन द ऑर्गेनाइजेशन गेट प्रॉफिट, ओके, और उसका इंटरप्रेनर का मेन है कि हाउ टू यूटिलाइज मिनिमम रिसोर्सेस टू गेट मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट्स को हम यूज करके कैसे मैक्सिमम आउटपुट एक्चुअली प्रोड्यूस करेंगे, वही है इंटरप्रेनर। तो जो भी मिनिमम फैसिलिटीज है, वैसे ही जो हमारा इंटरप्रेनर है वो प्रिंसिपल है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो वही चाहेगा कि जो जो रिसोर्सेस है, चाहे जो टीचिंग रिसोर्स है कि जो फिजिकल रिसोर्सेस है कि जो हमारा मॉनेटरी रिसोर्स है लिमिटेड है, उसको कैसे हम यूटिलाइज करके एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज देंगे बच्चों को, जो कोई क्वेश्चन रेज नहीं करेगा कि बच्चों को इस तरीके का फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। सर्चिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड इनिशिएटिंग इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। डिस्टर्बेंस हैंडलर, कोई भी डिस्टर्बेंस होता है वो हैंडल करेगा उसको। रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स बेसिकली इट मीन्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्कर्स है, किसको कैसे अलॉट किया जाएगा। जैसे स्कूल लेवल में रिसोर्स एलोकेटर जो टाइम टेबल है कितना कितना क्लास अलॉट होगा, आप देखा होगा जो टिपिकल सब्जेक्ट्स है जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, उसको थोड़ा ज्यादा पीरियड एलोकेट किया जाएगा क्योंकि वो टॉप सब्जेक्ट है। तो if more periods allocated, then the particular teacher, respective teacher, spend more time with the students. कि कितना क्लास रिमेडियल में कितना क्लास अलोकेट किया जाएगा, कि सुपरविजन में कितना क्लास अलोकेट किया जाएगा, कि वीकली कितना एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट होगा, कि कितना क्लास स्पेशली अलोकेट किया जाएगा सपोर्टिव लर्नर्स के लिए। तो ये रिसोर्स अलोकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट वन नेगोशिएटर, रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन आर्ट मेजर नेगोशिएशंस, ठीक है। तो ये सो डिफरेंट मल्टी फैसेटेड रोल है बेसिकली मैनेजर का। नेक्स्ट वन की मैनेजमेंट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स चाहिए, नॉलेज ऑफ एंड प्रोफिशिएंट स्पेशलाइज्ड फील्ड, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, आईटी। तो टेक्निकल स्किल्स अभी बहुत जरूरी है। जैसे स्कूल लेवल में मैनेजर मस्ट एक्सपर्ट इट मीन्स इन कंप्यूटर, ओके। तो चाहे एक्सेल सीट है कि चाहे टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन हो, हाउ टू यूज द स्मार्ट बोर्ड, कि इट मीन्स बेसिकली ही मस्ट हैव नॉलेज रिलेटेड टू द फाइनेंस की अकाउंटिंग और आईटी सेक्टर, ठीक है। और ह्यूमन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, माने एबिलिटी टू वर्क वेल विथ, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। जो इंटरपर्सनल स्किल, तो आईपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरपर्सनल रिलेशन, ओके। कैसे आपका अच्छा रिलेशन रहेगा, जैसे प्रिंसिपल का कैसे अच्छा रिलेशन रहेगा सभी टीचर के साथ, क्योंकि एक कलेक्टिव एफर्ट से एक्चुअली रिजल्ट आता है, आउटकम आता है। तो ये एक स्किल है इंटरपर्सनल स्किल। एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल, एक्चुअली द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज and diagnose complex situations and see the organization as a whole. तो conceptual skills actually जैसे स्कूल लेवल में जाइए, द प्रिंसिपल एक्चुअली ही मस्ट एक्चुअली हैव एबिलिटी टू डिटेक्ट द मेंटल एबिलिटी, प्रॉपर मेंटल टू एनालाइज एंड वो प्रॉपरली एनालाइज कर सकता है। तो कौन सा सब्जेक्ट में थोड़ा स्टूडेंट्स वीक है और उनको कैसे वो सब्जेक्ट में कैसे इट मीन्स व्हाट इनिशिएटिव्स शुड बी टेकन, what type of measures should be taken so that it means the particular subject the students actually they are weak one, and how to improve them actually in the respective subject. तो ये different skills मैनेजर का होना चाहिए, टेक्निकल, इंटरपर्सनल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, in which of the following performance appraisals individuals nominate their own appraiser? इंडिविजुअल्स को
एक ओन अप्राइजर, जैसे जो अप्राइजल होता है, एक सेल्फ अप्राइजल होता है, मैं खुद को मैं इवेलुएट करूंगा, ठीक है। सेल्फ अप्राइजल खुद को मैं इवेलुएट करूंगा, मगर नोमिनेट वन अप्राइजर मीन्स इट इज पीयर अप्राइजल। ऑप्शन 2 इज करेक्ट वन। पीयर ग्रुप में आप आपका फ्रेंड को बोलिए कि सपोज आई जस्ट इट मीन्स चूज वन ऑफ माई फ्रेंड, एक्चुअली ही एवेलुएट माई परफॉर्मेंस, ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे मेरा टीचिंग हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज है, कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, कि रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, की रैपोर्ट विद द चिल्ड्रन, की कोऑर्डिनेशन विद द पेरेंट्स। मैं खुद को मैं एवेलुएट नहीं करूंगा, मुझे मेरा फ्रेंड में चूज किया, मेरा फ्रेंड मुझे एवेलुएट करेगा, ठीक है। तो वो पीयर अप्राइजल है। अभी देखेंगे आप जो 360 डिग्री जो होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, वहां पर भी पीयर अप्राइजल है। इट मीन्स बेसिकली जो पर्टिकुलर चाइल्ड है उसका फ्रेंड्स उसको एवेलुएट करेंगे। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इसके ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पीयर अप्राइजल में वही बताया, इसको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। आप खुद को एवेलुएट नहीं करोगे, आप चूज करोगे आपका एक कलीग, आपका कलीग आपको एवेलुएट करेगा आपका परफॉर्मेंस को, ठीक है। जैसे स्कूल लेवल में बता रहा हूं, मैं मेरा कलीग, आई एम ए टीचर, जस्ट आई इट मीन्स मैं चूज किया मेरा एक फ्रेंड टीचर को, वो मुझे एवेलुएट करेगा, वो मेरा एकेडमिक्स को एवेलुएट करेगा, मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या है, चाहे करिकुलर एक्टिविटीज है, कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, कि को करिकुलर एक्टिविटीज है, कि मेरा क्या इंटरकनेक्शन है स्टूडेंट्स के साथ, और मेरा क्या रिलेशन है विथ पेरेंट्स, कि मेरा क्या रिलेशन है विथ कम्युनिटी, ठीक है। और मेरा जो टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन है, क्या मेरा जो टेक्नोलॉजी यूज करके मैं पढ़ाता हूँ, क्या वो इट मीन्स कैसा है, क्या वो मैं स्टूडेंट्स को एक्चुअली प्रॉपरली इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मेरा जो थ्रू एक्चुअली स्मार्ट बोर्ड्स एक्चुअली आई एम टीचिंग, कि थ्रू पीपीटीज जस्ट आई एम टीचिंग, सो हाउ मच एक्चुअली इट इज इफेक्टिव वन। तो ये पीयर अप्राइजल है। सेल्फ अप्राइजल खुद को एवेलुएट करना, दिस इन्वॉल्व्स द इंडिविजुअल एवेलुएटिंग देमसेल्व्स। आप देखा होगा जो एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट है, जो अपार होता है, जो हमारा एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है एवरी ईयर, तो उसमें हमारा एक सेल्फ अप्राइजल होता है, हम खुद को एवेलुएट करते हैं, ठीक है। आप डिटेल्स, आपके पास क्या क्या रोल है, आप क्या क्या रोल प्ले कर रहे हो, और आपका किस किस एरिया में क्या क्या आप अचीवमेंट दिया, आपके पास टारगेट क्या था, अचीवमेंट क्या है, ये सब सेल्फ अप्राइजल होता है। तो आप खुद को आप एवेलुएट कर रहे हो, सेल्फ अप्राइजल। नेक्स्ट वन एक है अपवर्ड अप्राइजल। अपवर्ड अप्राइजल में क्या है, एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर उसका सुपीरियर ऑफिसर को असेस करेगा, एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर उसका सुपीरियर ऑफिसर को जब असेस करेगा, एवेलुएट करेगा, वो अपवर्ड अप्राइजल। और एक है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इसमें क्या है, स्पेसिफिक स्किल्स बिहेवियर्स को एक्चुअली एवेलुएट किया जाएगा। दिस इज ए मेथड ऑफ अप्राइजल फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक स्किल्स एंड बिहेवियर्स rather than a category of who performs the appraisal, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का अप्राइजल है, एक पीयर, एक सेल्फ अप्राइजल, एक अपवर्ड अप्राइजल, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आपको कोई एक्चुअली एवेलुएट नहीं करेगा, असेस नहीं करेगा, इसमें स्पेसिफिक स्किल्स एंड बिहेवियर्स को एक्चुअली एवेलुएट किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is not a principle of observation as listed in the Flanders इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। नो इंट्रैक्शन, आप देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करूंगा। फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम में क्या है, जो टीचर स्टूडेंट बेसिकली क्लासरूम में जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है, ये जो टीचर स्टूडेंट के बीच में जो वर्बल कम्युनिकेशन मेन है, वही है इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। उसमें एक्चुअली 10 कैटेगरीज है, तो 10 कैटेगरीज है, उसको हम असेस करेंगे, उसको कोडिंग किया जाएगा कि ये कोड फुलफिल हुआ, हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे जो टीचर स्टूडेंट वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो 10 कैटेगरीज में, और उसको वही कोड जब जब होता है, सपोज इसमें 10 कैटेगरीज है, सपोज 5th कैटेगरी, वो 5th कोड के आकार में हम रखेंगे, उसको एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें हम एनालाइज करेंगे कि टीचर का परफॉर्मेंस क्या है, कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या है, क्या
वो जो इंटरेक्शन था टीचर स्टूडेंट में, वो ज्यादातर टीचर का जो प्रिडोमिनेंट रोल था ना स्टूडेंट का प्रिडोमिनेंट रोल था। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन एज लिस्टेड इन द फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। No interaction analysis should be conducted unless the person is familiar with the entire process and knows its limitations. Value judgments about good and bad teaching behaviors can be made. Questions should be answered by inspecting the matrix. The matrix should be developed before the observation takes place. Emphasis is to be given to the problem being investigated so that cause and effect relationship can be discovered. देखिए इसमें एक चीज है, ये जो वैल्यू जजमेंट्स है ये प्रिंसिपल नहीं है। वैल्यू जजमेंट्स अबाउट वैल्यू जजमेंट्स नहीं है, डायरेक्टली टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा है और इंटरमिटेंटली कंटिन्यूअसली उसको चेक किया जाएगा। 10 कैटेगरीज फ्लैंडर्स एक्चुअली एम्फसाइज किया है। उसी 10 कैटेगरीज के ऊपर एक्चुअली जो इंटरेक्शन वर्बल कम्युनिकेशन है टीचर स्टूडेंट को, उसको हम चेक करेंगे, उसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू जजमेंट से यहां पर बात नहीं आता है, तो ये एक प्रिंसिपल नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आप अभी देखिए इसमें आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। बेसिकली जो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है, जो अब्रिविएशन फॉर्म में FISC, इट इज ए सिस्टमेटिक मेथड डेवलप्ड बाय नेड ए फ्लैंडर्स टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज क्लासरूम वर्बल इंटरेक्शन स्पेशली बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। मैं वही बताया, जो वर्बल इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट्स के बीच में, उसको एनालाइज किया जाएगा। ओके, उसमें इसमें दिया है FISC records who is talking and what kind of talking is happening during a classroom session. It helps understand teaching behavior and classroom dynamics. अभी आपको 10 कैटेगरीज में देता हूं। 10 कैटेगरीज में 2 प्रकार का टॉक है। टीचर टॉक है, कैटेगरीज 1 to 7 है। स्टूडेंट टॉक है जो 8, 9, 10 है, 8 to 10 है। टीचर टॉक में आता है कैटेगरीज एक्सेप्ट्स फीलिंग्स, टीचर एक्नॉलेजेस स्टूडेंट्स इमोशंस। ठीक है, यहां पर क्या है, टीचर एक्चुअली जो स्टूडेंट का क्या इमोशन है टीचर ही उसको एक्नॉलेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन प्रेजेस और एनकरेजेस मोटिवेट स्टूडेंट्स, इसमें आता है एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज ऑफ स्टूडेंट्स। तो टीचर को क्या करना है, जो स्टूडेंट का जो आइडियाज है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको प्रमोट करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि कभी कभी स्टूडेंट का आइडियाज को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, नहीं नहीं आपका ये आइडिया नहीं चलेगा, मगर उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और उसी का आइडिया को लेकर हमको कुछ प्रैक्टिकल बेस, कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना है। ठीक है, ये है थर्ड जो टीचर टॉक में आस्क क्वेश्चंस, ये कॉमन है। तो टीचर्स का जो काम है बेसिकली क्वेश्चन पूछना। लेक्चरिंग ये एक डिस्कशन मेथड, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनिंग मेथड है। डायरेक्शंस देना, इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स टू द स्टूडेंट्स। एंड क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, जिस एरिया में सपोज चाइल्ड का कुछ भूल होता है उसको जस्टिफाई करना है, इसी एरिया में आपका ये रॉन्ग है और इसको रेक्टिफाई करना है। तो ये जो टीचर टॉक में आता है, चाहे स्टूडेंट्स का फीलिंग्स को एक्चुअली इट मीन्स देखना है, क्या फीलिंग्स है चाइल्ड का, उसको एनकरेज करना है, उसका आइडियाज को एक्सेप्ट करना है, उसको क्वेश्चन पूछना है और एक अच्छा इंफॉर्मेशन डिस्कशन करना है, टॉपिक को, कंटेंट को अच्छे से विथ एग्जांपल। डायरेक्शंस देना है स्टूडेंट्स को, और जहां पर वो भूल कर रहे हैं, सपोज इफ दे मेक एनी मिस्टेक, देन सपोज गिविंग गाइडेंस टू देम कि इन दिस एरिया एक्चुअली यू आर हैविंग फॉल्ट एंड यू रेक्टिफाई इट। ये टीचर टॉक में आता है। स्टूडेंट टॉक में मैं बताया था 2 चीज इसमें आता है स्टूडेंट टॉक में, स्टूडेंट रेस्पॉन्स, स्टूडेंट इनिशिएशन। स्टूडेंट को क्या है, रिप्लाईज करना है, जो टीचर्स जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी चीज पूछ रहे हैं, स्टूडेंट को रिस्पॉन्स करना है। और एक स्टूडेंट इनिशिएशन क्या है, वो इंटरेक्ट करना है। स्टूडेंट को क्या करना है, टीचर के साथ सभी समय इंटरेक्ट करना है। ठीक है, जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट मैटर है और एनी अदर मैटर के ऊपर टीचर के साथ इंटरेक्ट करना है। तो ये स्टूडेंट टॉक में आता है। और एक साइलेंस और कंफ्यूजन, साइलेंस और केओस में क्या है, नो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। तो ये 10 कैटेगरीज है, तो उसको हम एनालाइज करेंगे। ये 10 कैटेगरीज को कोड क्या कर में, सपोज जैसे जो 8 है, स्टूडेंट रेस्पॉन्स कर रहा है, तो वो कोड है 8, तो ये एक कोड है। ठीक है कि नहीं, कि स्टूडेंट इंटरेक्ट कर रहा है टीचर के साथ, हम एनालाइज देख रहे हैं, तो उसका कोड 9 है। तो ऐसे करके हमको एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, और उसमें हमको पता चल जाएगा
वही इसको ऐसे कोडिंग कर देंगे, हम एनालाइज करेंगे उसको, कोडिंग करेंगे उसको, कोडिंग करने के बाद उसको एनालाइज करेंगे। अच्छा, हाउ इट वर्क्स, तो इसमें क्या है ना, क्लासरूम इंटरेक्शन इज ऑब्जर्व्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो क्लासरूम इंटरेक्शन हो रहा है, जो वर्बल इंटरेक्शन हो रहा है टीचर स्टूडेंट के बीच में, उसको रेगुलरली इंटरवल्स में, वो फ्लैंडर्स बोले हैं यूजुअली एवरी 3 सेकेंड्स में। ठीक है, जो फ्लैंडर्स जो इंटरेक्शन जो एनालिसिस मॉडल है, इसमें बोले एवरी 3 सेकेंड में, एवरी 3 सेकेंड्स इंटरवल में इंटरेक्शन को एनालाइज करना है। ईच इंटरेक्शन इज कोडेड इनटू वन ऑफ द 10 कैटेगरीज, और उसको मैट्रिक्स बनाना है, तो तब हम टीचिंग पैटर्न को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं। तो उसमें मेन पर्पज क्या है ना, टीचिंग इफेक्टिवनेस इवेलुएट करेंगे, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, ठीक है, और थर्ड चीज है टू आइडेंटिफाई वेदर टीचिंग इज ए टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड। तो ये 3 चीज को पर्पज आप देख लीजिए। ठीक है, तो एक जो वर्बल इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट, वही है फ्लैंडर्स एक्चुअली इंटरेक्शन एनालिसिस जो मॉडल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, which of the following options correctly represents the decisional roles of a manager। अभी मैनेजर्स का जो डिफरेंट रोल्स है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप यहां पर देख लीजिए मैनेजर का क्या डिसीजन रोल रहेगा। ऑन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, मैनेजर फंक्शंस एज ए स्पोक्स पर्सन एंड फॉर्मली रिलेज इंफॉर्मेशन टू पीपल आउटसाइड द यूनिट्स और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक डिसीजन रोल नहीं आएगा। ये डिसेमिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिटिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बैक टू अदर्स इन द वर्क प्लेस, ये डिसीजन, ये एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड रोल रहेगा। नेक्स्ट वन, द लाइजन रोल ऑफ इन्वॉल्व सर्विंग एज ए कोऑर्डिनेटर और लिंक अमंग ग्रुप पीपल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक डिसीजन में नहीं आएगा, डिसीजन रोल में नहीं आएगा। डिसीजन रोल में आज ए रिसोर्स अलोकेटर डिसाइड्स हाउ रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड विथ हुम, यही ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आप मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, आप देखिए जो डिफरेंट रोल्स है, चाहे इंटरपर्सनल रोल है कि इंफॉर्मेशन रोल है कि डिसीजन रोल है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आप थोड़ा देख लीजिए। तो यहां पर जो ऑप्शन 4 है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या है, सिलेबस रिलेटेड दिया है। Which of the following statements is correct in defining the syllabus? सिलेबस का जो मेन बेसिकली जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी का बात बोल रहा हूँ, बेसिकली ग्रुप ऑफ एडुकेटर से वो सिलेबस फ्रेम करते हैं एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट स्टेज में, कि ये सिलेबस रहेगा स्टैंडर्ड 8 में, देन स्टैंडर्ड 9 में, देन स्टैंडर्ड 10 में, कि स्टैंडर्ड 11 में। तो वो सिलेबस फ्रेम करते हैं डिफरेंट स्टेज के लिए। तो सिलेबस मेन है, उसका जो मेन रोल है, मेन एम्फसाइज हमको करना है टीचिंग। उसमें जो सिलेबस में जो चैप्टर्स है, उसमें जो कंटेंट है, तो उसको बेसिकली द टीचर्स एक्चुअली दे मस्ट टीच द कंटेंट प्रॉपरली एंड दे मस्ट एम्फसाइज ऑन, इट मीन्स कॉन्सेप्चुअलाइज्ड टीचिंग, यानी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, कुछ लाइव एग्जांपल्स देना है और कुछ पिक्चर बेस्ड एग्जांपल देना है। तो जैसे ईच एंड एवरी स्टूडेंट दे मस्ट अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। तो हम ऐसे अभी रोट लर्निंग को एम्फसाइज नहीं करेंगे, ऐसे हम पढ़ा देना है, स्टूडेंट्स रिमेंबर कर देंगे और लिख देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो सिलेबस का वही है, प्रॉपरली टीचिंग होगा, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करेंगे, जो हमारा बच्चे हैं उनको जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो 4 ऑप्शंस दिया है, इट इज द टोटल एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन in as well as out of school. It is a plan that interprets educational aims vis-a-vis both the individual and society to arrive at an understanding of the kinds of learning experiences school must provide to children. It is a planned, sustained and regular learning which is taken seriously, which has a distinct and structured content and which proceeds via some kind of stage of learning. It refers to the content of what is to be taught and the knowledge, skills and attitudes that are to be deliberately fostered together with stage specific objectives. तो यहां पर देखिए जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, हमको जो कंटेंट है उसको जो टीचर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू टॉट द कंटेंट इन द क्लासरूम, और उसमें टीचर्स कैसे, जो स्टूडेंट्स कैसे नॉलेज एक्वायर करेंगे, उनका स्किल कैसे इंप्रूव होगा, उनका कैसे एटीट्यूड रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि हाँ ये कंटेंट डिस्कस हुआ और सर कुछ एग्जांपल्स दे दिए
और टीचर्स ऑल्सो दे आस्क स्टूडेंट्स यू कैन गिव सम एग्जांपल्स और यू कैन इनिशिएट सम प्रोजेक्ट। ओके, सो ये होने से क्या है, क्या होता है, बेसिकली हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, जो स्टेज स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाएंगे। तो मेनली वही है सिलेबस का, कंटेंट्स को अच्छे से द टीचर्स एक्चुअली मस्ट टीच द कंटेंट प्रॉपरली so that the students properly acquire the knowledge about the content, and also their skill power must be improved। कुछ जब टीचर्स कुछ लाइव एग्जांपल दे दिए, स्टूडेंट्स भी वो उनका थिंकिंग को यूज किए, दे कैन यूज देयर थिंकिंग स्किल, एंड ऑल्सो दे ऑल्सो ब्रिंग सम एग्जांपल्स। उसमें उनका जो प्रैग्मेटिक आइडियाज डेवलप होता है, उनका क्रिएटिविटी डेवलप होगा। और उसमें क्या है, तो हमारा जो स्टेज स्पेसिफिक है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करेंगे। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करेक्ट आंसर देखेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। अभी देखिए जो क्वेश्चन आ रहा है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे जो अभी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आप देखा होगा असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन रिलेटेड आ रहे हैं, बट थोड़ा उसमें क्या है, जो चिल्ड्रन को उसका थिंकिंग पावर को यूज करना है, ठीक है। तो उसमें क्या है, थोड़ा अभी क्या है, उसमें क्या है, द स्टूडेंट्स एक्चुअली दे कॉम्पीट अमंग ईच अदर। ऐसा नहीं है कि कुछ बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, वही कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, मगर थोड़ा सोचना है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हम देखेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट रिक्वायर्स स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। Competency based assessment approach acknowledge the interconnectedness between knowledge, skills, attitudes, values and behaviors. Competency based assessment requires a mindset shift towards only the product of assessment is important and process is not important। देखिए फर्स्ट टू ऑप्शंस आर करेक्ट वन। स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली लर्निंग प्रोसेस में ज्यादा है अभी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है, और उसमें क्या है कि इंटरकनेक्टेडनेस रहता है, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज एंड बिहेवियर्स। तो ये फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ए एंड बी। तो ओनली तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट जाता है ना, टीचर इज ए फैसिलिटेटर। टीचर का वर्क है वो कंटेंट को एक्सप्लेन कर देगा अच्छे से, तो फिर स्टूडेंट एक्चुअली ही मस्ट थिंक अबाउट द कंटेंट, एंड also he actually through his creativity, through his critical thinking, actually he interconnect the concept with others, ठीक है। और उसमें क्या है, जो नॉलेज है, स्किल है, जो एफिशिएंसी पावर है, ये धीरे धीरे क्या होगा, फोस्टर होगा चाइल्ड का, ठीक है। तो अभी जो अभी ज्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट को इंफोसिस है, जैसे कि पैसेज है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज कर रहा है, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट को उसका थिंकिंग पावर को यूज करना है, उसका लॉजिकल पावर को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट रिफ्लेक्टिव करिकुलम। अच्छा, रिफ्लेक्टिव करिकुलम रिलेटेड है, क्या करेक्ट है? इट फेवर्स सिस्टम ओरिएंटेड करिकुलम, इट फोकसेस ऑन लर्निंग आउटकम्स rather than learning processes, it focuses on learning processes, values and honors everyday practice as the ground for learning, it goes in favor of the grain of a deterministic curriculum। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। इट फोकसेस ऑन लर्निंग प्रोसेसेस, वैल्यूज एंड ऑनर्स एवरीडे प्रैक्टिस एज द ग्राउंड फॉर लर्निंग। हम थोड़ा रिफ्लेक्टिव करिकुलम के ऊपर में डिस्कस करता हूं, यहाँ पर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। कुछ एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। ये रिफ्लेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आ रहा है। इट इज एन एजुकेशनल फ्रेमवर्क दैट प्रायोरिटाइज द जर्नी ऑफ लर्निंग ओवर स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिजल्ट्स। देखिए इसमें क्या है, जैसे हम ये सोच रहे हैं कि अल्टीमेटली एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है, मगर इसमें क्या है, द एजुकेशनल फ्रेमवर्क दैट उसका प्रायोरिटी क्या है, द जर्नी ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ओवर स्टैंडर्डाइज, हम जो हमारा जो लर्निंग प्रोसेस अभी चल रहा है उसी प्रोसेस को हम थोड़ा चेक करेंगे अच्छे से, कि जो कंटेंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या वो द चाइल्ड उसको वो कंटेंट के ऊपर उसका डोमिनेंस है कि नहीं, कि चाइल्ड उसको उसके बाद वो चाइल्ड उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि नहीं।
हम वो तो स्टैंडर्डाइज्ड जो एंड रिजल्ट है, एनुअल एग्जामिनेशन होगा, वो उसका परफॉर्मेंस परसेंटेज रैंक हम देखेंगे। तो इट इज बिल्ड ऑन द फिलोसफी दैट एजुकेशन शुड बी ए डायनामिक एंड इवॉल्विंग कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर, द स्टूडेंट एंड द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो वही है, इट इज एन एजुकेशनल फ्रेमवर्क दैट प्रायोरिटाइज लर्निंग। देखिए इसमें एक सपोज आप एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हो, पर्टिकुलरली एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हो, चैप्टर के ऊपर जैसे आप एक सपोज मैथ्स में एक फ्रैक्शन चैप्टर डिस्कस कर रहे हो, तो हाउ टू डिफाइन द फ्रैक्शन, एक लाइव एग्जांपल में आपको डिस्कस करना है फ्रैक्शन को। सपोज हम एक जैसे यहाँ पर क्या किया मैं, जैसे एक रेक्टेंगल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसमें हम 1 पार्ट को हम शेडेड कर दिया, तो कितना पार्ट शेडेड हुआ, 1/4। तो ये एक फ्रैक्शन आ गया, तो आउट ऑफ 4 पार्ट्स 1 पार्ट इज शेडेड। तो लाइक दिस आपको हम ज्यादातर क्या है, स्टैंडर्डाइज जो रिजल्ट है वो अलग बात है, अल्टीमेटली एनुअल एग्जामिनेशन होगा, हम देखेंगे। मगर जब लर्निंग प्रोसेस, जब टीचर एक कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक्सप्लेन करने के बाद वो एक्चुअली वो देखता है कि क्या है स्टूडेंट का नॉलेज, क्या है वो कंटेंट के ऊपर, क्या उसी कंटेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्या वो अटेम्प्ट कर सकता है, क्या वो लिख सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, कोर फीचर्स को देखेंगे। फिर रिफ्लेक्टिव करिकुलम, फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेसेस, ये इंपॉर्टेंट है। जब टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन चल रहा है उसी टाइम में, ठीक है, तो उसी टाइम में टीचर एक्चुअली जज करेगा कि कंटेंट को एक्सप्लेन कर दिया गया, एक्सप्लेन करने के बाद कुछ लाइव एग्जांपल्स दे दिया गया, प्रैक्टिकल्स कर दिया गया, तो उसके बाद हम देखेंगे डेप्थ एक चाइल्ड का, ईच एंड एवरी चाइल्ड का हम डेप्थ देखेंगे कि वो कंटेंट को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं, कि वो उसी कंटेंट को यूज करके वो क्रिएटिविटी में कुछ न्यू आइडियाज क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं। तो रिफ्लेक्टिव करिकुलम लर्निंग प्रोसेस को इंपॉर्टेंस देता है। तो इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग सोली ऑन लर्निंग आउटकम्स और फाइनल ग्रेड, हम फाइनल ग्रेड तो अलग बात है, वो हम ज्यादातर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं रहेंगे। एग्जामिनेशन होगा, उसमें कोई पोजीशन आएगा, कोई रैंक आएगा, कोई परसेंटेज आएगा, वो अलग बात है। ठीक है, दिस मॉडल एम्फसाइजेस द मेथड्स, थिंकिंग पैटर्न्स एंड स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द लर्निंग जर्नी। सपोज एक मैथ्स आप देखिए, सपोज मैथमेटिक्स का बात बोल रहा हूं, जैसे आप चेक कर रहे हैं, आप एक न्यूमेरिकल दे दिया एक चाइल्ड को, तो वो स्टेप्स में डिफरेंट स्टेप्स में उसको एक्सप्लेन किया। हम अल्टीमेट रिजल्ट को नहीं देखेंगे, जैसे स्टेप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अल्टीमेट रिजल्ट आएगा। हम क्या करते हैं, कभी कभी रिजल्ट को देखकर मार्क दे देते हैं। सपोज रिजल्ट रॉन्ग है मगर स्टेप्स करेक्ट है, मगर इसी में रिजल्ट गलत है मगर स्टेप्स करेक्ट है, तो स्टेप्स को देखकर हम मार्क देते हैं। ठीक है कि नहीं, तो हम अल्टीमेटली क्या है, हम ओनली रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट ठीक है, स्टेप्स ठीक नहीं है, रिजल्ट ठीक है, तो रिजल्ट को देखकर हम मार्क दे दिया, ये ठीक नहीं है। हम स्टेप्स को चेक करेंगे, ऑलमोस्ट ऑल स्टेप्स आर करेक्ट वन, बट जब कैलकुलेशन का बात आता है, लास्ट रिजल्ट जब वो आंसर निकलता है वो रॉन्ग हो गया आंसर। ठीक है, तो ये चीज आ जाता है। तो मेनली हम स्टेप्स को एम्फासाइज करेंगे, फाइनल जो आंसर है उसको वो तो इंपॉर्टेंट है, मगर फाइनल आंसर को देखकर हम मार्क नहीं देंगे। ठीक है, हमको स्टेप्स को चेक करना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट वन, वैलोराइजेशन ऑफ एवरीडे प्रैक्टिस, इट व्यूज डेली क्लासरूम एक्सपीरियंसेस एंड रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस as the primary ground for acquiring knowledge। एक रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन, रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन, जैसे आपको यहां पर एक एग्जांपल आपको देना है। जैसे आप एक एप्पल लीजिए, एप्पल लीजिए, एप्पल को एक एप्पल को आप कट कर दीजिए 4 पार्ट्स में। ओके, सपोज में लिख दिया कट इनटू 4 पार्ट्स, एंड 4 मेंबर्स को जो स्मॉल स्मॉल पार्ट है 4 मेंबर्स को दे दीजिए। जैसे फादर है, एक पार्ट मिला, मदर को मिला, ब्रदर को मिला, सिस्टर को मिला, तो एक एक पार्ट उनको मिला, एक एक पार्ट, 1 पार्ट आप दे दिए फादर को, मदर को। तो फ्रैक्शन चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फादर को कितना पार्ट मिला, 1/4, क्योंकि एक सिंगल एप्पल को हम कट कर दिए 4 पीसेस में, तो उसका एक पीस हम फादर को दे दिए, मदर को एक पीस दे दिए, ब्रदर को दे दिए, सिस्टर को दे दिए। तो हम जब देखेंगे कि फादर को कितना पार्ट मिला,
तो अपन का कितना पार्ट मिला ना, 1/4, आउट ऑफ 4 पार्ट्स 1 पार्ट मिला, यही जब फ्रैक्शन का बात आता है तब ये इस तरीके का लाइव एग्जांपल आपको देना है, ठीक है। कोई भी, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो कि सोशल साइंस हो, आपको लाइव एग्जांपल्स कुछ देना है और उसको इंटर कनेक्ट करना है। जैसे आपका रियल वर्ल्ड इंट्रैक्शन, जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आप उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस, इट ऑनर्स द लाइव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स, integrating their personal backgrounds and daily practices into academic context। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, जैसे आपको कुछ पर्सनल बैकग्राउंड्स, इंटीग्रेटिंग देयर पर्सनल बैकग्राउंड्स एंड डेली प्रैक्टिसेस इनटू द एकेडमिक कॉन्टेस्ट। डेली प्रैक्टिसेस में सपोज आप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को जाइए, इसमें एक चाइल्ड वो मार्केट जा रहा है, फादर एक चाइल्ड को बोला तू मार्केट जा, तो वो जाकर सेलर को पूछता है कि सेलिंग प्राइस क्या है ना, सेलिंग प्राइस एक्चुअली 15 रुपीज है। तो वो चाइल्ड पूछता है सेलर को कि आप कितने में खरीदा था, वो बोल रहा है 10 रुपीज। तो इसमें प्रॉफिट कितना आता है, प्रॉफिट कितना आता है, 5 रुपीज है। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है एक्सपीरियंसेस। तो इस तरीके से तो चाइल्ड को पूछना है कि आप, छोटा छोटा जो जब बच्चों को जब प्रॉफिट लॉस चैप्टर स्टार्ट होता है तब आपको पूछना है कि आप मार्केट जा रहे हो, यू आर गोइंग टू द मार्केट टू परचेज समथिंग, and when you go and want to purchase the commodity, what type of things you ask to the seller, पूछेगा कि प्राइस क्या है, जो प्रोडक्ट में खरीदना चाहता हूँ प्राइस क्या है। आप कभी पूछा, आप तो वो सेलर तो बोल रहा है 15 रुपीज, मगर आप पूछना चाहिए वो शॉपकीपर को कि वो कितने में खरीदा था, तो उसी में आपको पता चल जाएगा उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल देना है। और क्रिटिकल इंक्वायरी, इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स and educators to look back at their actions and decisions to understand why and how। अच्छा, इसमें क्या आता है क्रिटिकल इंक्वायरी में, जो रिफ्लेक्टिव करिकुलम क्या बोल रहा है, जैसे एक टीचर पूछ रहा है कि why should you choose this method for practical, so many methods are there, क्यों आप ये मेथड को चूज किया प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। कि आपको पूछना है कि बाय यूजिंग दिस मेथड हाउ कैन यू अराइव एट द कंक्लूजन। तो इस जो व्हाई हाउ, ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है क्रिटिकल इंक्वायरी है, आप उनको पूछना है कि सो मेनी डिफरेंट मेथड्स आर देयर, व्हाई यू, सपोज एक क्वेश्चन, आप एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स है, वहां पर टीचर पूछ रहा है कि आप मुझे आंसर बता दो, व्हाई शुड यू यूज दिस मेथड टू कंप्लीट दिस न्यूमेरिकल। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्रिटिकल इंक्वायरी है, तो ये भी रिफ्लेक्टिव करिकुलम में आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29, as per the national accreditation, as per the national accreditation board for education and training, NABET, document on accreditation standards for quality school governance, what are the 3 key domains of the accreditation standards? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो NABET है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो उसमें 3 की डोमेन्स क्या है, स्कूल गवर्नेंस, एजुकेशन एंड सपोर्ट प्रोसेसेस, एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इंप्रूवमेंट, इनपुट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, कंटेक्स्ट इनपुट एंड प्रोसेस, स्कूल गवर्नेंस, कंटेक्स्ट एंड इनपुट एंड प्रोसेस। तो उसमें देखिए जो 3 मेन डोमेन है NABET का, वो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, स्कूल गवर्नेंस, एजुकेशन एंड सपोर्ट प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इंप्रूवमेंट। ये मैंने स्कूल गवर्नेंस में सब कुछ चीज आता है, तो चाहे जो मैनेजमेंट है, चाहे जो एकेडमिक ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, कि हाउ मच द स्टूडेंट्स आर कॉम्पिटिटिव वन, ठीक है। और टीचर्स का बात आता है कि जैसे टीचर्स का बात आएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, okay, how many teachers actually already they adapt with the dynamic technology and they can use the better technology and involve them in teaching learning transaction। क्या सपोर्ट, एजुकेशन एंड सपोर्ट प्रोसेसेस, किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स को और किस तरीके का सपोर्ट दिया जा रहा है टीचर्स को। और अल्टीमेटली हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट देखेंगे, अल्टीमेटली क्या रिजल्ट है, असेसमेंट का क्या रिजल्ट है, क्या कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर एक्चुअली जो स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो ग्रो किया है कि नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन 1, तो इसीलिए इसी रिलेटेड में
एक ग्रेडिंग मिलता है जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो डॉक्यूमेंट, तो उसमें वो एक क्वालिटी को चेक करता है, स्कूल का क्वालिटी क्या है थ्रू ग्रेडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन स्कूल असेंबली। Right, the school assembly generally provides the only arena where all the students are scheduled to meet in one place at one time. The school assembly reflects more accurately the actual atmosphere of a school than other single activity. The feeling of isolation in school assembly is dependent upon the size of the school. करेक्ट आंसर पूछोगे, देखिए जो स्कूल असेंबली जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको पूरा स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो ऑल स्टूडेंट्स एक्चुअली दे कैन मीट टू ईच अदर एट ए पर्टिकुलर प्लेस। फर्स्ट वन करेक्ट है। स्कूल असेंबली से पता चलता है कि क्या एक्चुअल एटमॉस्फेयर है स्कूल का। द स्कूल असेंबली रिफ्लेक्ट्स मोर एक्यूरेटली द एक्चुअल एटमॉस्फेयर ऑफ ए स्कूल अदर देन सो मेनी एक्टिविटीज होता है, मगर स्कूल असेंबली एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें स्कूल का एक्चुअल एटमॉस्फेयर पता चलता है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड वन गलत है, तो उसमें करेक्ट पूछा है, तो यहां पर मेरा आंसर होगा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट asserts दैट मोटर कंट्रोल इमर्जेस फास्ट इन द ट्रंक बिफोर अपियरिंग इन द हैंड्स एंड फिगर्स। प्रिंसिपल ऑफ, ये देखिए, प्रोक्सिमोडिस्टल, ऑर्थोजेनेटिक, सेफलोकार्डल एंड हायरार्कियल इंटीग्रेशन प्रिंसिपल। तो उसमें मैं बोलूंगा, जैसे आपका जो इट मीन्स आपका मोटर कंट्रोल ट्रंक से स्टार्ट होता है, फिर वो डाइवर्ट होता है हैंड्स एंड फिगर्स को, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रोक्सिमोडिस्टल, उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें चारों को हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए, फर्स्ट वन प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, ये है फर्स्ट वन जो ट्रंक से एक्चुअली बेसिकली इमर्ज होता है, वो सेंटर है, तो उसमें आउटवर्ड टू द एक्सट्रीमिटीज हैंड्स एंड फिगर्स। तो जो प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल वो बोल रहा है जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस हो रहा है वो ट्रंक से स्टार्ट होता है, देन वो एक्सट्रीमिटीज को जाता है, हैंड्स फिगर्स को, ठीक है। तो चिल्ड्रन फर्स्ट गेन कंट्रोल ओवर ट्रंक, देन आर्म्स हैंड्स फिगर्स, ये प्रोक्सिमोडिस्टल है। सेफलोकार्डल क्या है? डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो, सेफलोकार्डल प्रिंसिपल, हेड टू टो जो डेवलपमेंट, हेड से स्टार्ट होता है, टो से फिनिश होता है, ओके, ये जो प्रिंसिपल है ये सेफलोकार्डल है। ऑर्थोजेनेटिक क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ओके, डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और जो हायरार्कियल इंटीग्रेशन है, इसमें लोअर स्किल टू कॉम्प्लेक्स स्किल, लोअर स्किल्स टू कॉम्प्लेक्स स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों प्रिंसिपल को आपको देखना है, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में ये आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो प्रोक्सिमोडिस्टल, सेफलोकार्डल, ऑर्थोजेनेटिक एंड हायरार्कियल इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, a principal observes that while two siblings in the same school share an identical home environment, their cognitive maturation rates differ significantly. This observation directly supports which stance on the nature nurture debate. तो उसमें देखिए, टू सिबलिंग्स है, सेम एनवायरमेंट सेम है दोनों के लिए, मगर उनका जो कॉग्निटिव मैच्योरेशन है वो अलग है, उनका जो थिंकिंग स्किल है वो अलग है, मगर सेम एनवायरमेंट में दोनों सिबलिंग्स ग्रो किया है, मगर उनका जो कॉग्निटिव मैच्योरेशन वो डिफरेंट है, उनका जो थिंकिंग स्किल है डिफरेंट है। ये जो नेचर नर्चर डिबेट में उसको चेक करेंगे। 4 ऑप्शंस गिवन, द एनवायरमेंट एक्ट्स एज ए लेवलिंग फील्ड दैट ओवरराइड्स जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, डेवलपमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ पैसिव कोरिलेशन वेयर द एनवायरमेंट इज द सोल ड्राइवर, मैच्योरेशन इज एन entirely exogenous process independent of environmental stimuli, development follows a reaction range where heredity sets the limits and environment determines the position within those limits. यहां पर देखिए 4 ऑप्शंस, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेम एनवायरमेंट है, मगर जो बोथ सिबलिंग्स एक्चुअली दे ग्रो इन अ सेम एनवायरमेंट, बट दे जो कॉग्निटिव जो थिंकिंग स्किल वो डिफरेंट है। इसका रीजन है, इसमें एक फैक्टर आता है कि ठीक है, एक रिएक्शन रेंज होता है वेयर हेरिडिटी सेट्स द लिमिट्स। इसमें क्या है आपका
एनवायरमेंट सेम हो सकता है, मगर जो आपका जो कॉग्नाइटिव मैच्योरेशन है, जो आपका जो थिंकिंग स्किल है, वो डिफरेंट होता है। इसमें रेंज है वेयर हेरिडिटी सेट्स द लिमिट्स एंड एनवायरमेंट डिटरमाइंस द पोजीशन। ठीक है, एक हेरिडिटी फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स रहता है। ठीक है, एक जेनेटिक फैक्टर्स रहता है, और एनवायरमेंट का काम है पोजीशन विद इन दिस लिमिट्स, मगर हेरिडिटी के जेनेटिक फैक्टर्स रहता है। उसके बेसिस में क्या है, सेम एनवायरमेंट में दो सिबलिंग्स ग्रो कर रहे हैं, मगर उनका जो मैच्योरिटी लेवल है, कॉग्नाइटिव मैच्योरिटी लेवल है, जो थिंकिंग लेवल है, वो अलग है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, according to Kohlberg's theory of moral development, at which level a middle school student functioning if he or she follows school rules primarily to gain approval and praise from the teacher? यदि वो स्कूल रूल को, एक मिडिल स्कूल चाइल्ड के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, यदि वो स्कूल रूल को प्रॉपरली फॉलो करता है तो उसको प्रेज मिलेगा टीचर से। तो ये कौन सा लेवल में आता है? तो उसमें आप देखा होगा प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो उसमें आपका 6 स्टेजेस है। तो अभी उसको देखेंगे, आगे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें जो आंसर है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। कन्वेंशनल मोरालिटी, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। क्योंकि यहां पर क्या है, जो मिडिल स्कूल स्टूडेंट के लिए, एक एडोलेसेंट चाइल्ड के लिए, वो ये सोच रहा है कि मैं यदि जो स्कूल रूल्स को ठीक से फॉलो कर रहा हूं, जस्ट इफ आई फॉलो द स्कूल रूल्स प्रॉपरली, कि वी आर ओबीडियंट वन, तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग प्रेज फ्रॉम द टीचर। ये है, तो ये कन्वेंशनल मोरालिटी है, उसको ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। उसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, फर्स्ट जो प्री कन्वेंशनल लेवल है कोलबर्ग का, जो मोरल रीजनिंग के ऊपर एम्फसाइज किया है चाइल्डहुड स्टेज में, इसमें 2 स्टेजेस है, एक ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। वो ये चाइल्ड सोच रहा है कि मुझे ओबीडियंट रहना है, नहीं तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। ये चाइल्डहुड स्टेज में डूइंग द राइट थिंग, मुझे जो काम करना है सही करना है, नहीं तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो जो भी काम करता है अच्छा काम करता है। ठीक है, और एक है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, टिट फॉर टैट एक्सचेंज। टिट फॉर टैट एक्सचेंज क्या है, इसमें सपोज वो चाइल्ड ये सोचता है कि वो मुझे स्लैपिंग करेगा तो मैं उसको भी स्लैपिंग करूंगा। तो ये सब टीट फॉर टैट एक्सचेंज जो होता है, यू डू समथिंग राइट बिकॉज, अच्छा इसमें क्या है, एक एग्जांपल दे दिया, यदि मुझे अच्छा काम करना है तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। यू डू समथिंग राइट बिकॉज देयर इज ए बेनिफिट और रिवॉर्ड फॉर यू। तो इसमें चाइल्डहुड स्टेज में एक ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और एक इंस्ट्रूमेंटल, जो इसको बोलते हैं टीट फॉर टैट पॉलिसी। ठीक है, तो स्टेज ये जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है चाइल्डहुड स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज जो कन्वेंशनल आता है, कन्वेंशनल में आप देखिए एडोलेसेंस एंड मेनी एडल्ट्स। कन्वेंशनल स्टेज में एक गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। एक मिडिल स्कूल चाइल्ड जो क्वेश्चन पूछा है कि इफ आई डू द राइट थिंग देन डेफिनेटली माय टीचर्स एक्चुअली प्रेज टू मी। यदि मुझे अच्छा काम करना है, इफ आई फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल प्रॉपरली, देन डेफिनेटली the teachers praise me. If I am obedient one in the classroom, the teacher praise to me. तो ये आता है कि every day if I do the homework, then my teacher praise to me. My teacher actually giving reward to me. तो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन एक है। स्टेज 4 में कन्वेंशनल लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड फॉलो द लॉज फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी एज ए होल। तो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना है, और जो लॉज है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, उसको फॉलो करना है फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी एज ए होल। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है कि हमको लॉ एंड ऑर्डर जो है सोसाइटी, कम्युनिटी में, नेशन में, उसको फॉलो स्ट्रिक्टली करना है। ठीक है, तो ये एक आता है। तो ये 2 स्टेजेस कन्वेंशनल लेवल में आता है। फिर पोस्ट कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस आता है। एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कि लॉज आर सीन आज सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट शुड बी चेंज्ड इफ दे डू नॉट प्रमोट। ये देखिए, जो भी लॉज है और दैट शुड बी, यदि वो जनरल जो लोगों का वेलफेयर के लिए नहीं आएगा, तो वो लॉ को चेंजेस करना है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। लॉज आर सीन आज सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स
दैट शुड बी चेंज्ड इफ दे डू नॉट प्रमोट द जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल। और एक है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये सम अडल्ट्स के लिए आता है। मोरालिटी इज बेस्ड ऑन सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक जस्टिस, ह्यूमन राइट्स दैट अप्लाई टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द लॉ। तो ये जो है, ये जो पोस्ट कन्वेंशनल है, बेसिकली यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये बहुत उसका जो डिग्री जो उसको फॉलो किया जाता है, बहुत कम अडल्ट उसको फॉलो करते हैं। जैसे हमको जस्टिस चाहिए सोसाइटी में, कि हमको ह्यूमन राइट्स चाहिए, ओके, ईच एंड एवरी टाइम वी मस्ट प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल, वी मस्ट बिलीव ऑन जस्टिस, कि हम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो राइट्स है, राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उसको हमको ब्रीच नहीं करना है, ठीक है, ये जो मोरालिटी है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट वही है, जो भी लॉज है वो सोसाइटी का फेवर में होना चाहिए, यदि सोसाइटी का फेवर में नहीं है तो उसको चेंज कर देना चाहिए, यही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following best describes the most significant contribution of the family as a primary socialization agency? Formal transmission of codified curriculum, institutional evaluation of competencies, structured peer-based moral negotiation, development of early emotional security and basic trust। तो इसमें देखिए ऑप्शन 4 बहुत इजी है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में चाइल्ड को क्या चाहिए? इमोशनल सिक्योरिटी एंड बेसिक ट्रस्ट चाहिए, वही है सोशलाइजेशन, फैमिली एज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी। तो एक छोटा बच्चा है, उसको क्या चाहिए? उसको वो ये सोचता है, वो छोटा बच्चा को क्या चाहिए ना, ट्रस्ट चाहिए। उसका फादर मदर के ऊपर बहुत ट्रस्ट होता है, और वो जानता है कि मुझे इमोशनल सिक्योरिटी ही मेरा फादर मदर दे सकते हैं। तो वही डेवलपमेंट ऑफ ईयरली इमोशनल सिक्योरिटी एंड बेसिक ट्रस्ट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। The question number 35, the Right to Free and Compulsory Education Act 2009 explicitly addresses the protection of children from corporal punishment and psychological harm within school premises. Under which section of the act is physical punishment and mental harassment of a child expressly prohibited? आप RT 2009 देखिए, इसमें कौन सा सेक्शन में क्लियरली मेंशन है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्चुअली प्रोहिबिटेड एंड कोई साइकोलॉजिकल हार्म और कॉर्पोरल पनिशमेंट ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 17। सेक्शन 17 में क्लियरली मेंशन है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड ऑल्सो देयर इज नो साइकोलॉजिकल हार्म गिवन बाय द टीचर्स, ओके, ओवर द चाइल्ड। तो सेक्शन 17 जो RT 2009 में, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इसके ऊपर थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो सेक्शन है यहाँ पर दिया है, देखिए सेक्शन 17(1), 17(2), नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट। कोई भी चाइल्ड को फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा कि मेंटल हरासमेंट नहीं किया जाएगा। 17(2) में जो इसको वायोलेट करेगा उसके अंडर में डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है। और बाकी कुछ सेक्शंस, जो सेक्शन 13 है, आप देख लीजिए, जो क्या कोई भी जो हिडन फी है, कैपिटेशन फी की स्क्रीनिंग प्रोसीज्योर नहीं रहेगा। पहले जो छोटा छोटा बच्चों के, जैसे बाल बाटिका में एडमिशन हो रहा है, 3 ईयर चाइल्ड एडमिशन ले रहा है, उसके लिए कोई स्क्रीनिंग प्रोसीज्योर नहीं रहेगा, क्योंकि वो हिडन फी नहीं रहेगा। सेक्शन 13। सेक्शन 21 बोल रहा है स्कूल मैनेजमेंट कमिटी रिलेटेड है, RT 2009। सेक्शन 25 पीपल टीचर रेशियो, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीपल टीचर रेशियो में स्टैंडर्ड 1 to 5 एक्चुअली 30 चिल्ड्रेन 1 टीचर, और अबव 150 चिल्ड्रेन है तो एक हेडमास्टर आ जाएगा। तो इसमें 30 चिल्ड्रेन ओके कंट्रोल बाय 1 टीचर। यदि अबव 150 होगा तो 1 टीचर फॉर एवरी 30 स्टूडेंट्स, ए हेडमास्टर रहेगा। और जो अपर प्राइमरी है 6 to 8, 35 चिल्ड्रेन 1 टीचर, एटलीस्ट 1 टीचर पर क्लास के लिए 1 टीचर रहेगा। सब्जेक्ट में साइंस मैथ्स में 1 रहेगा, सोशल स्टडीज में 1 रहेगा, लैंग्वेज में 1 रहेगा। और रेशियो रहेगा जो पीपल टीचर रेशियो ही रहेगा। और इफ स्टूडेंट्स एक्सीड 100 तो उसमें एक फुल टाइम हेडमास्टर रहेगा। इसको थोड़ा इंफॉर्मेशन के लिए आपको दे दिया, ठीक है। तो जो पीपल टीचर रेशियो है, प्राइमरी में 30:1 एंड अपर प्राइमरी में 35:1। और वहां पर यदि अबव 150 होता है प्राइमरी लेवल में, एक हेडमास्टर रहेगा। मगर यहाँ पे प्राइमरी अपर प्राइमरी में इफ द स्टूडेंट्स एक्सीड्स 100, एक हेडमास्टर रहेगा। और एवरी क्लास में टीचर रहेंगे। साइंस मैथ्स के लिए, साइंस एंड मैथ्स एक टीचर, सोशल स्टडीज एक, लैंग्वेज 1। इसको थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दिया।
नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द मेजर फोकस ऑफ मैनेजरियल लीडरशिप। अभी मैनेजर का लीडरशिप के ऊपर मैं बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेवलपिंग ए कंपेलिंग विजन फॉर द फ्यूचर, मैनेजिंग फंक्शंस, टास्क एंड बिहेवियर एफिशिएंटली, encouraging इमोशनल कमिटमेंट फ्रॉम स्टाफ, प्रमोटिंग टीचर ऑटोनॉमी एंड क्रिएटिविटी। इसमें ऑप्शन जो मेजर फोकस है, मैनेजिंग फंक्शंस, टास्क एंड बिहेवियर एफिशिएंटली, ये मेजर फोकस ऑफ मैनेजरियल लीडरशिप, मेजर पूछा है, ठीक है। जो भी फंक्शंस है, प्रॉपरली मैनेजिंग द डिफरेंट फंक्शंस, टास्क एंड बिहेवियर्स एफिशिएंटली। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 37, यहाँ पर एक असर्शन एंड रीजनिंग है। असर्शन में दिया है कि एडुकेशनल मैनेजमेंट इज प्राइमरली कंसर्न विद कैरिंग आउट एग्रीड पॉलिसीज। ये करेक्ट है, क्योंकि जो एडुकेशनल मैनेजमेंट होता है उसका मेन है जो भी पॉलिसीज है उसको कैरी आउट करना, जो भी पॉलिसीज है उसको कैरी आउट करना, ये तो कॉमन चीज है। एजुकेशनल मैनेजमेंट में सब कुछ आएंगे। एजुकेशनल मैनेजमेंट में आपका देखिए, प्रिंसिपल, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, आपका पीटीसी पेरेंट टीचर कमिटी एक है, कुछ कम्युनिटी मेंबर्स और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, सब आते हैं। तो उनका है जो पॉलिसीज है उसको कैरी आउट करेंगे। रीजन दिया है, एडुकेशनल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नहीं, एडुकेशनल मैनेजमेंट का पॉलिसी फॉर्मुलेशन के ऊपर फोकस नहीं करेगा, उसके लिए अथॉरिटीज है। ओके, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए आपको कुछ एडुकेशनिस्ट है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, कुछ हायर अथॉरिटीज है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे। एडुकेशनल मैनेजमेंट उसको कैरी आउट ओनली करेगा। जो भी पॉलिसीज एक्चुअली फॉर्मुलेशन होगा, जो भी पॉलिसीज फॉर्म होगा उसको कैरी आउट करेंगे एडुकेशनल मैनेजमेंट। तो रीजन इनकरेक्ट है, तो उसमें ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। assertion is correct one, but reason is false. Option 3 is the correct answer. Question number 38. What is the central focus of ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेसिकली एक इंस्पिरेशन, ये सब चीज आता है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ये है मोटिवेशन। उसमें क्या है, बेसिकली जो एम्प्लॉइज को जो लीडर है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में, जैसे प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल का काम है, ही मस्ट बी द एक्चुअली इंस्पिरेशन फॉर द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज सोचेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनका जो लेनिएंट नेचर है, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशन है, उनका जो गाइडेंस है, उनका जो टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन है क्लासरूम में, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है वो बहुत अच्छा है। और एक मोटिवेशन, आपको प्रिंसिपल को मोटिवेट करना है, टीचर्स को डिमोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेट करना है, बूस्ट करना है। इट मीन्स बेसिकली हाउ डू द टीचर्स प्रॉपरली इन्वॉल्व इन टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन, how can they coordinate with the students, how can they interlink with the students, it means how to prepare the supportive learners. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाउ टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, ये जो है बेसिकली इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यही है। बेसिकली द जो एम्प्लॉयज सोचना है कि हमारा जो लीडर है वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, और बेसिकली प्रिंसिपल मोटिवेट करना है, वो बूस्टिंग करना है एम्प्लॉयज को, ठीक है। एक अच्छा ट्रेनर वो है, वो एक अच्छा टीचर है प्रिंसिपल, एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा उनका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अच्छा नॉलेज है, फाइनेंस के ऊपर नॉलेज है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर नॉलेज है, ठीक है। तो उसमें भाई इससे होता है क्या है, तो जो एम्प्लॉइज है उनका एक कमिटमेंट होता है कि हाँ, हम ये जो हमारा ये कमिटमेंट है कि हम इतना सब्जेक्ट एवरेज लाएंगे, कि हमारा ईच एंड एवरी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इसी के वजह से जो हमारा टीचर्स है उनका स्किल, उनका जो एफिशिएंसी प्रमोट होता है। तो यही है 4 ऑप्शन, स्ट्रिक्ट adherence to government policies, the commitments and capacities of organizational members, financial management of schools, control over curriculum content only. Option 2, the commitments and capacities of organizational members. Option 2 is the correct answer. ठीक है, इसको थोड़ा आप देख लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप फोकसेस ऑन
inspiring, motivating, and developing people within the organization. It aims to build their commitment, skills, and potential so they contribute effectively to shared goals. वही है, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यही है, क्या फोकस करना है कि इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड जो एम्प्लॉइज है उनको कैसे डेवलप किया जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, हम ऐसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जो हमारे एम्प्लॉइज बहुत कमिटेड रहेंगे, उनका स्किल पावर स्लोली ग्रेजुअली इट कैन बी इम्प्रूव्ड एंड ऑल्सो दे कैन अचीव अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियलिटी। तो इसमें क्या है, अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो ऑटोमेटिकली अचीव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ए स्कूल encourages shared decision making among teachers, but decision processes become slow and the principal remains formally accountable for the outcomes. Which leadership model does this scenario represent? देखिए, एक शेयर्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए अमंग टीचर्स। ओके, स्कूल सभी समय एनकरेज करता है एक शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन होगा वो शेयर्ड होगा, और मगर जो डिसीजन प्रोसेसेस है वो स्लो है। जो भी डिसीजन लिया गया वो उसको तो कैरी आउट किया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, मगर बहुत स्लोली चल रहा है। तो उसमें मेन अकाउंटेबिलिटी किसका है? प्रिंसिपल है, ठीक है। तो उसका आउटकम के लिए हुई तो मैंने पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप कैसे? एक कॉलेक्टिव प्रिंसिपल को एक कॉलेक्टिव हम बोलते हैं कि कॉलेक्टिव लीडर, क्योंकि वो अच्छा फर्स्ट वन आईपीआर अच्छा डेवलप करेगा सभी एम्प्लॉइज के साथ, ठीक है। फर्स्ट वन, ही मस्ट डेवलप द प्रॉपर इंटरपर्सनल रिलेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर लिंक विथ द टीचर्स, प्रॉपर गाइड, इट मीन प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस, ओके, ऑलवेज मोटिवेटिंग द टीचर्स, ठीक है। ये होने से जो भी डिसीजन हम करेंगे वो फास्टली वो प्रोसेस होगा और इजीली हम हमारा अचीव जो टारगेट है हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव organizational performance in schools requires independent functioning of each department without coordination, alignment of all persons and resources towards specific goals, financial control only, minimal planning and spontaneous decision making. Option 2, effective organizational performance actually alignment of all persons and resources towards specific goals. Okay, जो भी हमारे एम्प्लॉइज है, ओके, उनको एक साथ लेना है, उनके साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करना है, उनका जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है और उनको जो भी फैसिलिटी चाहिए देना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो रिसोर्सेस है उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, तब हम एक स्पेसिफिक गोल में रीच कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये केवीएस एनवीएस प्रिंसिपल पेपर का एक सेकेंड पार्ट था। तो ये बेसिकली ये एकेडमिक और मैनेजमेंट रिलेटेड पार्ट था, ठीक है। जो नेक्स्ट 41 to 60 आएगा वो रिलेटेड टू द गवर्नमेंट रूल्स आएगा, आप वेट कीजिए मेरा थर्ड पार्ट को। तो आज इतना ही है। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। So in my video, if any suppose if you detect any shortcoming or disadvantages, please forgive me. Thank you and namaskar to all of you, and again just you wait for my subsequent video. Thank you and namaskar to all of you.